السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ منہیات اسلام، یعنی اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کیا چیزیں منع کی گئی ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ پھر اتفاق سے طبیعت خراب ہو گئی اور 2-3 دن جو پروگرام نہیں ہوا، تو گویا اس لحاظ سے آج اس کا دوسرا درس ہے، لیکن حقیقت میں یہ پہلا درس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم طہارت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن کی جو ہے وہ منیمم درجے کی کوالٹی یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جو منع کیا ہے اس کو زندگی میں قطعی نہ کرے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اگر آپ رسول کی بات بھی نہیں مانتے تو بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی بات نہیں مانی جاتی تو اللہ ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، خاص کر شریعت کے معاملے میں، وہ منع کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ نے آپ کو کیا کیا ہے، منع کیا کہ آپ اس کو بتائیے۔ تو اللہ کی منع کردہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو ہم ایک ایک بات آپ سے کریں گے اور اس کو آپ کو دیکھتے رہنا ہے کہ ہم اس میں کہاں انوالو ہو رہے ہیں۔ طہارت کا سب سے پہلی چیز جہاں سے ہم بات شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ قوم یعقدون فی الطہور وفی الدعاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو طہارت خوب دیر تک کرے گی اور دعائیں خوب لمبی لمبی مانگے گی۔ یہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ استنجا خانے میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ طہارت کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پیر ایسے کرتے رہتے ہیں، ویسے کرتے رہتے ہیں، آگے چلتے رہتے ہیں، پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور اسی میں بسا اوقات لوگوں کی نمازیں کیا ہوتی ہیں، چلی جاتی ہیں اور ان کی طہارت ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو ہو گئی ہے شک کی بیماری۔ شک کی بیماری کی بنیاد پر اب یہ وہ لمبا سے لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب کسی بھی آدمی کو اگر شک کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کے پاس اس کا لو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور وہ محسوس ہوگا کہ یہ بڑے دیندار لوگ ہیں اور بہت ہی پاکی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ پاکی صفائی کا خیال اتنا ہی رکھنا ہے جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے ایک بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ جتنی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جس معاملے میں بنائی ہے، اس سے ایڈوانس جیسے آپ جائیں گے آپ اپنے اوپر مصیبت مول لیں گے۔ ایک غالباً صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کو یہ ہو گیا کہ جب ہم جاتے ہیں بیت الخلا وغیرہ تو وہاں مکھیاں ہوتی ہیں، مکھیاں گندگی پر بیٹھتی ہیں اور وہ اٹھ کر ہمارے لنگی پر بیٹھتی ہیں، کپڑے پر بیٹھتی ہیں۔ تو اس لیے 2 الگ الگ لباس ہونا چاہیے۔ ایک ہم جب ٹوائلٹ جائیں تو الگ لباس ہونا چاہیے، اور جب اس کے بعد فارغ ہو کر کے پھر ہم نماز وغیرہ پڑھیں تو دوسرا لباس ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ایسا کیا۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اگر یہ چیزیں ایسی ہیں، خدا نہ خواستہ کہ وہ بیٹھتی ہے، گندگی لگی جاتی ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گندگی نہیں بتایا تو آپ اتنا اسمارٹ ہو کر کے اس کو گندگی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ تو جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گائیڈ کیا ہے اس کے آگے جائیں گے مصیبت آ جائے گی۔ تو یہاں 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ دوسرا ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ خوب لمبی لمبی دعائیں کریں گے۔ آپ جمعہ میں دیکھیں امام صاحب مانگ رہے ہیں۔ حیرت یہ ہوتی ہے کہ جن جن چیزوں سے نبی نے منع کیا ہے وہ زیادہ کرنا ہے، اور یہ امت کے اندر مزاج مطلب کیوں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان اس کو کیا کرتا ہے؟ نبی کے خلاف سب سے پہلا بڑا کام شیطان کا اللہ کے خلاف، اور دوسرا بڑا کام کیا ہے؟ نبی کے خلاف۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 1,25,000 صحابے تقریباً تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تقریر کی، کوئی دعا ہی نہیں مانگی۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी दुआ कौन मांगेगा? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर आमीन, फरिश्ते आमीन कहें, लोग आमीन कहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुआ ही नहीं मांगी। पूरी आप हज्जतुल वदा देख लीजिए, तकरीर हुई है, बाकायदा तकरीर की गई है, तकरीर रिकॉर्ड है, एक एक जुमला रिकॉर्ड है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुआ नहीं मांगी। तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो तहारत में जो है वो फरमाया कि कौमें ऐसा आएंगी जो खूब मुबालगा करेंगी तहारत में। तहारत में सबसे पहली चीज जो बंदा उठता है सुबह सुबह, यहां से हम बात शुरू करेंगे। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है जो पढ़ने जा रहा हूं। ये देखें ये सब हमारी सोसाइटी में कैसा है। अल्लाह के रसूल फरमाया इज़स्तयक़ज़ फी मनामिही फला यग़मिसु यदहु फी इनाई, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के रसूल फरमाया कि जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले जो है वो अपने हाथ को धुलो कबल इसके कि आप अपना हाथ बर्तन में डालें। अब दो तरीके से हमारे इस वक्त हालात हैं। बाद जगह तो ऐसा है कि 24 घंटे आपके नल में पानी आ रहा है, और बाद जगह ऐसा है कि आपको पानी भर के रख लेना है बर्तन में, और उसके बाद फिर हफ्ते भर या 2-4 दिन या जैसे भी है उसको इस्तेमाल करते रहना है। जो नल में पानी आ रहा है उसमें तो चलो ठीक है कि आपने नल खोल दिया और हाथ धुल लिया, आपका कहीं पानी हाथ कहीं गया ही नहीं। लेकिन जो पानी भरा रखा हुआ है उस पानी से आप जब उठते ही सुबह पहले सबसे पहले वो पानी कैसे निकालेंगे? आप जैसे ही आप पानी निकालेंगे तो पहले आप क्या करेंगे? अपना हाथ पानी में डालेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये जो रात में आप सोए हैं, फिर उसकी इल्लत बयान की, वजह बयान की कि आईना बातक यदहु, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे हाथ ने रात कहाँ गुजारी है, हाथ गंदा है कि हाथ साफ है, लिहाजा सबसे पहले हाथ धुला जाए। अब सवाल है कि हाथ धुलने के लिए पानी चाहिए, बात समझे ना मेरी भाई? वो उसके लिए भी कहें। हमने देखा है कि जो लोग सुन्नत पर अमल करते हैं, एहतियात करते हैं, घर में औरतें, घर में मर्द, वो क्या करते हैं कि रात में एक जग में पानी निकालकर अलग रख देते हैं, रात ही में निकाल करके बंद करके रख देते हैं। सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उस जग से अपने हाथ को धुल लेते हैं। अब आप घर का जो भी बर्तन उससे पानी क्या कर लें, इस्तेमाल कर लें। तो ये उसका तरीका है। खासकर जहां पर पानी की शॉर्टेज है या पानी भरा जाता है उनको चाहिए। और ये जब आप करेंगे तो ये सवाब है, ऐसा नहीं है, ये क्या है? सवाब है। इस नियत से इसको करना है। तो हमारी औरतों को भी बात मालूम होना चाहिए और हमारे मर्दों को भी बात मालूम होनी चाहिए। दूसरी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यस्ततीबा बिअज़्मिन औ रौसिन। ये नसाई की रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं कि कोई आदमी हड्डी से या गोबर से इस्तिंजा करे। जब लोग मैदान में होते हैं, आज भी गाँवों में पानी हर जगह तो रहता नहीं है, तो लोग मिट्टी से इस्तिंजा करते हैं। तो आपने मना फरमाया कि हड्डी से इस्तिंजा नहीं किया जाए, हड्डी जो गोश्त वगैरह की, तो और गोबर से, और दोनों के मना करने की वजह भी बयान फरमाई। आपने फरमाई ये जो हड्डी है, ये जो हलाल जानवर होते हैं और हलाल जानवर को हलाल तरीके से क्या कहते हैं ज़बह किया जाता है और आप उसको क्या कहते हैं फेंक देते हैं, तो ये जिन्नातों की बहुत बड़ी ग़िज़ा है। हड्डी जो है जिन्नातों की बहुत बड़ी ग़िज़ा है, तो वो भी दुनिया की एक मखलूक है। आप जब उससे इस्तिंजा कर लेते हैं तो फिर वो उसको नहीं खाते। लिहाजा उनका ये देखिए नबी के उनका भी ख्याल रखा गया है कि आप हड्डी से इस्तिंजा नहीं करें। इसी तरीके से जो गोबर है, गोबर से इस्तिंजा कर, गोबर पहली बात तो खुद नापाक चीज है, उससे इस्तिंजा करने की मना किया गया कि नबी के मुताबिक फरमाया कि ये उनके जानवरों की ग़िज़ा है। किसके? जिनों के, जानवरों की ग़िज़ा क्या है? गोबर है। लिहाजा गोबर से भी इस्तिंजा ना किया जाए और हड्डी से भी इस्तिंजा नहीं किया जाए। एक रवायत में जो है कोयले से भी मना किया गया है। कोयला जो जला होता है, चूल्हे वगैरह से निकलता है लकड़ी से, उससे भी मना किया गया है कि उससे भी इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से बुखारी की रवायत है कि वला यस्तंजी बियमीनिही, कि आपको चाहिए कि दाहिने हाथ से इस्तिंजा नहीं करें। दाहिने हाथ से इस्तिंजा का मतलब ये होता है कि शर्मगाह को दाहिने हाथ से छूना या दाहिने हाथ से पकड़ना, इससे जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दाहिने हाथ के अदब के खिलाफ है।
दाहिना अल्लाह को और उसके रसूल को बहुत पसंद है, लिहाजा दाहिने हाथ से ये गलत काम किया जाए। एक शक्ल ये होती है कि आदमी इस्तिंजा तो बाएं हाथ से कर रहा है, लेकिन दाहिने हाथ से शर्मगाह को छू रहा है। ये कैफियत दोनों अलग अलग है, बात समझ मेरी। लिहाजा ये दोनों से क्या है, मना किया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब आदमी इस्तिंजा जाता है, ये एक आलमी सतह का ये मसला है। बुखारी की रवायत है, मुस्लिम की भी रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अतयतुमुल गाइत, जब तुम में से कोई आदमी इस्तिंजा करने जाए, फला तस्तक़बिलूहु वला तक़बिलूहा वला तस्तक़बिरूहा बिबौलिन वला गाइतिन, कि जब कोई आदमी इस्तिंजा करने जाए तो उसको चाहिए कि वो चाहे छोटा इस्तिंजा हो और चाहे बड़ा इस्तिंजा हो, उसको चाहिए कि क़िबले की तरफ न मुंह करे और न क़िबले की तरफ पीठ करे। अच्छा, अब क़िबले की तरफ जो पीठ है, मतलब जैसे कि एक आदमी क़िबला ये है, अब अगर क़िबले की तरफ पीठ किया तो भी, तो सवाल है कि पीठ तो हम इस वक्त बैठे हुए पीठ के बैठे ही हुए, पीठ के हम भी बैठे हुए, लेकिन इस वक्त बैठने का मकसद दूसरा है और इस्तिंजे की हालत में बैठने का मकसद क्या है, दूसरा है। लिहाजा वो क़िबले का एहतराम होना चाहिए जहां भी आप रहें। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाग बिल्डिंगें ऐसी बन जाती हैं कि जिसमें मजबूरी अनुसार, तो आप किसी के मेहमान गए, अब पता चला टॉयलेट ही बना हुआ है ऐसा कि वो क़िबले की तरफ ध्यान ही नहीं दिया इंजीनियर साहब ने। ये मुसलमान इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। जैसे मैं कहा करता हूं ना कि मुसलमान का हर काम इबादत है। मैंने पूरी इस पर तकरीर की कि एक इंजीनियर घर कैसे बनाए। एक मुसलमान इंजीनियर जो ड्राइंग करता है, घर की डिजाइनिंग करता है, उसको किन बातों का ख्याल रख करके, चाहे वो मकान मालिक को बताए या ना बताए, उसकी नीयत खुद ये रहनी चाहिए कि घर ऐसा बनना चाहिए। उस घर को बनाने के लिए अगर वो उसकी नियत करेगा तो उसको क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। बाद में उसका मालिक उसको चेंज करे वो एक अलग मसला है, लेकिन इसको पूरा सवाब मिलना चाहिए इसके काम पे। तो किसी भी घर में अगर मुसलमान इंजीनियर जो है वो ड्राइंग कर रहा है और वो नक्शा बना रहा है तो उसको पूरा ख्याल रखना चाहिए कि वो क़िबले की तरफ न बनाए। अब अगर बन गया, अब क्या किया जाए? अब इस मसले का दो हल है। हमारे यहाँ इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो इसके सख्त मुखालिफ हैं कि बिल्डिंग के अंदर भी अगर बना है तो भी गलत है। तो एक शक्ल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, अगर बिल्डिंग के अंदर है तो जायज है। मतलब दीवार अगर है, जैसे आप बैठे हुए हैं और दीवार है, यकीनी बात है कि जहां पे टॉयलेट है बंद है चारों तरफ से, तो उनका कहना है कि ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे, ये मैदान का हुक्म है। जब आप मैदान में बैठे हैं, खेत में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि क़िबले की तरफ पीठ भी नहीं हो, क़िबले की तरफ चेहरा भी नहीं हो। लेकिन जब अगर घर के अंदर है तो जायज है। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस का ये माना निकाला। हदीस ऐसे कई एक बहुत एक है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये मुतलक है लिहाजा हर जगह इसका ख्याल रखा जाएगा। अब जब आदमी फंस जाएगा कहीं खुदा ना खास्ता, तो फिर ऐसी शक्ल में उसको चाहिए कि जब वो बैठे तो थोड़ा सा तिरछा होकर बैठे। ये मजबूरी दर्जे की बात बता रहा हूं कि कहीं फंस गया आदमी जहां पर कि टॉयलेट का वही डिजाइनिंग बना हुआ है, आप उसमें कुछ आगे पीछे कर ही नहीं सकते, तो फिर ऐसी शक्ल में आदमी को चाहिए क्या है कि वो तिरछा होकर के बैठे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रवायत है कि आपने फरमाया कि 3 जगह आदमी पंखा चलोगे, 3 जगह जो है वो आदमी को चाहिए कि वो इस्तिंजा कतई न करे। 3 जगह ऐसी हैं कि जिसमें उसको इस्तिंजा करने से परहेज करना चाहिए। आपने फरमाया कि अलबर्राज फिल मवारिद, चश्मे की जगह पर, जैसे कहीं पे गांव है, देहात है, पानी का चश्मा निकल रहा है, अब आप वहीं पे बैठकर आपने क्या कर दिया, इस्तिंजा कर दिया। आपने फरमाया कि ऐसी जगह पे बैठकर पेशाब करने वाले पर लानत है। क्यों? जिसको भी जाना है गाली देना है। आप वहां जो भी बेचारा पानी भरने गया, तो आपने देखा बाप तालाब वगैरह में पानी लोग लेकर के आते हैं, चप्पल भी वहां जो है करीब उसको नहीं ले जाने देते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हम लोगों को हिदायत फरमाई कि कतई जो है ऐसी जगह पर जो है आदमी को चाहिए कि वो इस्तिंजा वगैरह नहीं करे। फिर आपने फरमाया कि फातुत करीब, रास्ता चलता है, गाँवों में इतना ज्यादा ये होता है जो पैदल रास्ते चलते हैं, होता क्या है कि वो रास्ते की जगह बहुत चिकनी होती है, रात में गया आदमी और बैठ कर क्या कर दिया, उसने इस्तिंजा कर दिया। अब आप देखें रेलवे में, भारत का तो ये मामला है कि आप सुबह के टाइम पर रेलवे में गेट के पास बैठ ही नहीं सकते, खिड़की से झांक ही नहीं सकते। पूरी एक बड़ी तादाद क्या है रेलवे लाइन के किनारे बैठी हुई है, वो क्या कर रही है, इस्तिंजा कर रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते में बैठकर, तो रास्ते से मुराद 2 है। एक तो ये है कि ऐसा रास्ता जिससे लोग गुजरते हैं
वो तो बहुत तकलीफ दह बात है। और दूसरा ये है कि लोग तो गुजर रहे हैं, घर से वो रास्ता नहीं है, लेकिन लोगों के लिए तकलीफ दह है, यानी लोगों मतलब वो गलत चीज को जो है वो देखना, किसी की जगह सतर्का खोलना भी गुनाह है और सतर्का देखना भी गुनाह है। जैसे कोई औरत है, कोई मर्द है, सतर्क खोले हुए हैं, हम ये समझते हैं कि भाई ठीक है छोड़ो यार इनका काम है। हम जो देख रहे हैं, हमारा देखना भी बुरी नीयत से, जैसे हमने नीयत बदली वैसे हमको गुनाह मिलता है। तो सतर्का खोलना अपनी जगह गुनाह, सतर्का देखना अपनी जगह गुनाह। फिर आपने फरमाया, तीसरी चीज फरमाया, अबू दाऊद की रवायत है कि वह भी दिल्ली सायेदार दरख्त के नीचे बैठ करके इस्तिंजा या पेशाब करना, क्योंकि रास्ता गुजरता है, लोग आराम करते हैं, बैठते हैं। आपने जा करके क्या कर दिया, वहां पर जो है इस्तिंजा कर दिया। इस्तिंजा से मेरा छोटा इस्तिंजा नहीं है, दोनों है, छोटा भी है और बड़ा भी है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी मना फरमाया। अबू दाऊद की एक रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुराख में पेशाब न किया जाए। वो गाँव में ये बहुत ज्यादा होता है, बच्चे खासकर शरारत करते हैं, वो क्या करते हैं, सुराख में पेशाब करते हैं। अब वो जो सुराख में पेशाब करते हैं, तो एक वजह तो आपने ये बयान फरमाई कि उस ऐसी जगह पर जिन जहां रहते हैं, जिनके रहने की जो जगह हदीसों में जिक्र की गई है, पहाड़ जिक्र किया गया है, जो पुराने कुएं हो जाते हैं उसमें रहते हैं, सुराखों में रहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये जिनों का मस्कन है, जिनों का घर है। अब उसके बाद जब आप देखते, बहुत से लोग शिकायत आपको मिलती ना कि फलां साहब गए इस्तिंजा करने और उसके बाद उनकी क्या हो गई, तबीयत अचानक खराब हो गई। गाँव में ये केस बहुत होते हैं। होता क्या है कि सायेदार दरख्त के नीचे भी जिन बहुत बैठते हैं, उठते हैं। अगर वहां जाकर के आपने इस्तिंजा कर दिया और खुदा न खास्ता उनकी मीटिंग चलती रही, वो बैठे रहे, उठे रहे, फिर उसके बाद वो तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से ऐसी जगह पर सुराख में अगर पेशाब कर दिया और उसमें कोई मखलूक, जिनकी तो सराहतन हदीस में जिनके अलावा भी क्या है, यकीनी बात है वो जो सुराख है तो किसी न किसी का घर तो है ही है, वो कोई न कोई जानवर, कोई न कोई चीज तो उसके अंदर उसने घर बनाया है, तभी वो सुराख है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत सिर्फ इसी अंदाज में नहीं की है कि इंसानों का ही ख्याल रखें, जानवरों को भी हमारी जात से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जब आदमी पेशाब करेगा तो उसको भी तकलीफ पहुंचेगी। और तीसरी बात यह कि आपको खुद मिसाल के तौर पर ऐसा वाक़या पेश आया कि सांप था और सांप निकला और निकल कर उसने शर्मगाह में ही काट लिया, उसके अंदर सांप बैठा हुआ। तो अपने को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया कि सुराख में जो है पेशाब न किया जाए। ये एक हदीस है अबू दाऊद की, इसको गौर से सुना। ये इसकी वजह से एक बहुत बड़ी बीमारी लोगों में है। नबी के अंदाज़ फरमाया कि ला यबूलन अहदुकुम फी मुस्तहमिही फइन आमतल विस्वास मिनहु। ये वसवसा जो है फइन आमतल विस्वास मिनहु, ये अबू दाऊद की रवायत है। आपने फरमाया कि जहां पर नहाया जाए वहां पेशाब न किया जाए। ये जो लोग बीमारी